So welcome student for today's session of base SAS और आज हम लोग सिखाने जा रहे हैं how to display data and apply filters to data। तो चलो शुरू करते हैं। Hello students, myself Professor Mahesh Mali. Welcome to my educational channel Data Guru Simplified Data Science, and I am here to make your learning simple and interesting. सब्सक्राइब करना ना भूलें Data Guru Simplified Data Science। तो चलो शुरुआत करते हैं। SAS display and filtering the data। SAS tables जिसका एक्सटेंशन होता है .SAS7BDAT, ये टेबल्स में हाउ टू डिस्प्ले द डेटा एंड हाउ टू फिल्टर द डेटा। फॉर दिस रीजन वी आर गोइंग टू यूज वेरियस स्टेप्स। फर्स्ट इज proc print। ओके, सो दिस इज द proc print। proc print का काम है टू डिस्प्ले द डेटा। proc print का काम है टू डिस्प्ले द डेटा। ओके, proc print डेटा, यहां पे डेटा का नाम लिखा और रन मतलब ये एग्जीक्यूशन कमांड है। अभी दूसरा मैंने देखा proc contents। देखो, इन SAS there are two parts of data, one is called as descriptor portion and one is a data portion। If you want to print data portion, we use print. If you want descriptor portion, then we use proc content। proc content is used to display the descriptor portion। उसके बाद आगे जाके एडवांस प्रोसीजर में we have proc means। इसका काम है स्टैटिस्टिकल डेटा प्रोवाइड करना। स्टैटिस्टिकल डेटा मतलब मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज, etc. etc. Then there is very important function called as proc frequency। proc frequency is used to print the frequency table, मतलब how many time that particular column or row has been repeated। So this is also very important when it comes to data analysis। ओके, सो आगे बढ़ते हैं, देखेंगे proc print procedure in details। proc print procedure is used for printing the rows, but if I want to control number of rows, I want only top 10 rows, then I can mention OBS equal to 10। OBS equal to 10, it will print only top 10 rows। So the general syntax is proc print data, you write input table and you write number of rows that you want। After that proc print में input table के साथ if you want only specific variables, only few variables, then you can write with help of var statement। It is acting like a projection operator to print specific columns। Okay, this will limit number of rows and this will limit number of columns। Okay, so as an example, if I want to print student data, only first 10 rows and that too only columns of student name, SID and age, then this will be my code। proc print data student OBS equal to 10 var sname SID sh run। These columns must present in above table। स्टूडेंट टेबल में ये कॉलम होने चाहिए, नहीं तो डेफिनेटली ये एरर देगा। सो यहां पे हम सबसे पहले स्टूडेंट टेबल को फेच करेंगे। ओके, then I will print only sname, SID, sh। All the rows will come
Out of that, all the rows will be reduced to only 10, and this output will be presented to you in results tab. आपका जो स्टूडियो में रिजल्ट्स टैब होता है उसमें ये रिजल्ट प्रेजेंट किया जाएगा. ओके, तो आपको समझ गया होगा कि डेटा पार्ट, किसी भी टेबल का डेटा पार्ट देखने के लिए प्रिंट लिखा जाता है, और वो कैसे लिखा जाता है वो मैंने अभी आपको सिखाया. अभी वही अगर मुझे स्टैटिस्टिकल मीन मैक्स, नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ वैल्यूज, if I want to see all these details, then I will go for the proc means data. Okay, so over here we can mention variables. Variable matlab columns, which based on which column you need to have the statistical values that can be presented. Okay, and do remember, proc means can be applied only to numeric columns. Very important. So as an example, let us take students data for age and fees paid. There are two columns. So variable is sh. Okay, label matlab uska naam stored in database. Suppose sh of 30 candidates, the average mean is 15, standard deviation can be 17.2, minimum age is 14, maximum age is 18, and likewise such means procedure will present you the statistical data. Next is proc frequency. अभी proc frequency का काम है, it creates a frequency table. It creates simply a frequency table. आप जो कॉलम नेम यहाँ पे दोगे उसके लिए ये frequency table बनाएगा. Okay, so how many times it is repeated, this will come in a frequency table. One of the very important procedure for statistical valuation. Next part is proc frequency. मैंने एक रो प्रिंट करके दिखा दिया आपको. proc frequency of student based on gender. अभी ये क्या करेगा, ये लिखेगा सेक्स मेल, मेल में ये लिखेगा 20 rows are printed. ठीक है, देन वो लिखेगा टोटल 100 स्टूडेंट्स हैं, 100 में से ये कितना है 20% है. वैसे ही फीमेल 80, ये कितने हैं 80% है. उसका नंबर देगा. ऐसे ऑल डिटेल्स विल बी प्रेजेंटेड विथ हेल्प ऑफ फ्रीक्वेंसी प्रोसीजर. उसके बाद आता है वेरी इंपॉर्टेंट, कॉल्ड एज प्रॉक यूनिवेरिएट डेटा. प्रॉक यूनिवेरिएट ये बहुत यूनिक प्रोसीजर है, इसे अच्छे से नोट कर लेना, बिकॉज ग्लोबल सर्टिफिकेशन में ये प्रोसीजर पे एक क्वेश्चन हमेशा आता है. अभी प्रॉक यूनिवेरिएट का मेन काम होता है टू जनरेट समरी स्टैटिस्टिक्स फॉर ईच न्यूमेरिक डेटा. फ्रीक्वेंसी में साथ में आता है, लेकिन यहां पे फॉर एवरी न्यूमेरिक डेटा देयर इज आउटपुट. ओके, जिसमें आपको मेनली दिखाई देगा टॉप 5 एंड बॉटम 5. Top 5 values in that particular column and bottom 5 values in that particular column, and which observation shows this top 5 values and bottom 5 values, that is included in the proc univariate. जैसे कि मैंने proc univariate डेटा देखा जेंडर के लिए, तो ये मुझे देगा टॉप 5 एंड बॉटम 5. अभी यहाँ पे तो कोई ऐसा वैल्यू दिख नहीं रहा है, ठीक है. तो यहां पे अगर हमने यूज किया सैलरी कॉलम, देन व्हाट इट विल डू, इट विल शो मी टॉप 5 सैलरीज ऑफर्ड बाय कंपनी, इवन लोएस्ट 5 सैलरीज. एंड सच कैटेगरी ऑफ यूनिवेरिएट
एक वेरिएबल का डेटा। देखो प्रोसीजर ही आपको बता रहा है यूनिवेरिएट, मतलब दिस हैज टू बी अप्लाइड ऑन अ सिंगल न्यूमेरिक वेरिएबल, ओके, एंड इट विल गिव यू लॉट ऑफ आउटपुट. So now we have understood about various display options in base SAS. Now let us move on to filtering data with help of where statement. Now do remember, where statement can be used in any procedure. कोई भी प्रोसीजर हो, आप सारे प्रोसीजर में ये वाला where expression यूज कर सकते हो. And what you write in where expression is a row qualifier condition. मतलब row will be printed in output only if this expression is qualified, मतलब true है. अगर row के लिए ये expression true है तो ही वो row output में print होगा. तो that is why we are writing here row qualifier condition. यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? रो क्वालिफायर कंडीशन. अभी इसमें बहुत सारे टाइप्स हैं, जैसे कि इक्वल टू के लिए हम लोग लिख सकते हैं नॉट इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ओके. तो ऐसे बहुत सारे सिंबल्स विथ देयर न्यूमोनिक इज रिप्रेजेंटेड हियर, ओके. सो दिस ऑल सिंबल्स यू मस्ट नो. लेकिन अभी आप बोलोगे सर सपोज मैं डेट ऑफ बर्थ कंपेयर कर रहा हूं, वेयर डेट ऑफ बर्थ इज ग्रेटर देन 1st January. अभी अगर मैंने ये कंपैरिजन किया तो सर यहां डेट ऑफ बर्थ जो मेरा टेबल का कॉलम है उसमें सेव क्या होता है बेटा? डेट नंबर. आपको पता है डेट कभी भी डेट करके सेव नहीं होती, इट इज सेव्ड एज अ डेट नंबर, मतलब एक न्यूमेरिकल वैल्यू एसोसिएटेड विथ डेट ऑफ बर्थ. तो कैन यू कंपेयर नंबर विथ वन डेट एक्सप्रेशन? आंसर इज नो. सो व्हाट टू डू? दिस डेट expression needs to convert into a number, and that task is done by this D. We write यहाँ पे D, which converts this date expression into one date number, जैसे कि 27,895, ऐसा कोई भी number, and then we can compare number to number, and this is the main reason for which date is converted into the numeric column, because it is very easy to be written within expression. All right, so this has given you an idea how to write expression in where. Now over here I am writing prop print with type equal to SUV and MSRP as 30,000 max. Okay, so it is printing. Now see, this is called as a combining expression. We can use or also. And का मतलब होता है this and this both need to be true if you want to print. और मतलब सिर्फ SU होगा तो भी प्रिंट होगा, अगर उसका प्राइस 30,000 के नीचे होगा तो भी प्रिंट होगा. मतलब और मतलब either or, and मतलब both simultaneously. So this is help to combine multiple expression in a single where statement. Okay, so now we are going to understand in operator. अभी in operator कैसे लिखेंगे? Where age is my column in 20, 22, 28, मतलब जितने एम्प्लॉय जिनका एज इक्वल टू 20 है और इक्वल टू 22 है और एज इज इक्वल टू 28 है. ओके, एज इक्वल टू 20 है और एज इज इक्वल टू 22 है और एज इज इक्वल टू 28 है. ये तीनों टाइप के रोज को ये प्रिंट करेगा. तो इतना बड़ा एक्सप्रेशन लिखने से बेटर दिस इज नथिंग बट अ शॉर्टकट फॉर राइटिंग और एक्सप्रेशंस. ठीक है, आप बोलोगे सर कैन वी यूज कैरेक्टर ओवर हियर?
Yes, of course. You can use city is equals to Mumbai, comma Pune, or any more cities. We can use it over here. Okay, so in operator works with both number as well as with the city values, that is character values, or even it works with date values. Next, very important, likewise we have is null option in SQL, we have is missing option in base class. It also has is null option and is missing, both options are there. Suppose I want to check age column, does it have any null value? I can write missing. Where age is missing, then it will print only the rows which are having missing data. If you don't want missing data, you want age which is present, matlab non-missing data, then we can go with not and we can reverse the result. Not is also a combining operator which is used to invert result, उल्टा रिजल्ट निकालेगा, मतलब इन में इस मिसिंग में जो आता है उसके अपोजिट वाला आएगा. नॉट हम लोग इन के साथ भी यूज कर सकते हैं, नॉट इन. ओके, तो दिस इज वेरी यूजफुल ऑपरेटर नॉट. और एक बहुत बढ़िया ऑपरेटर देखेंगे वेयर का. यहां पे बिटवीन, मतलब इफ आई वांट स्टूडेंट बिटवीन एज 20 and 30, then I can write it. Now see, age equal to 20 वाले लोग भी प्रिंट होंगे, और अगर उनका एज 30 होगा तो ये लोग भी प्रिंट होंगे. तो ये इंक्लूसिव वाला बिटवीन है, इट इंक्लूड्स बोथ द बाउंड्री वैल्यूज. अभी आप बोलोगे सर सपोज मैंने गलती से या फिर जानबूझ के बिटवीन नेम लिखा है, नेम कौन सा कॉलम है बेटा, स्टूडेंट नेम, बिटवीन अजय एंड विजय, ऐसे लिखा तो क्या होगा सर? देखो बहुत इंटेलिजेंट क्वेश्चन है ये. सबसे पहले आपको नेम का जो कॉलम है इट विल बी सॉर्टेड. सॉर्ट करने के बाद अजय और विजय का जो लोकेशन रहेगा कॉलम में, उनके बीच जितने भी नाम हैं इंक्लूडिंग दिस नेम्स विल बी प्रिंटेड. उसके पहले वाले नेम प्रिंट नहीं होंगे और विजय के बाद वाले नेम प्रिंट नहीं होंगे. दिस डेटा विल बी प्रिंटेड. अजय से लेके विजय तक का डेटा प्रिंट हो जाएगा. तो दिस इज अ वेरी नाइस क्वेरी फॉर योर ग्लोबल सर्टिफिकेशन एग्जाम इन बेस. Next is a like operator. This is one of the most popular operator in strings. जब भी मुझे नेम कंपेयर करना होगा, I want to see all the names starting with letter A. A के बाद परसेंटेज डाल दो. परसेंटेज मतलब इनफाइनाइट डोंट केयर, डोंट केयर. अंडरस्कोर का मतलब होता है वन डोंट केयर. चलो मैं इसका यूज दिखाता हूं. वेयर नेम इज लाइक, नेम का सेकेंड लेटर मस्ट बी ए, बाद में कुछ भी हो तो हम लोग यूज करेंगे वन डोंट केयर. अगर मुझे चाहिए नेम एंड्स विथ लेटर एच, स्टार्टिंग में कुछ भी होने दो परसेंटेज, लास्ट में एच होना चाहिए, दैट इज एब्सोल्युटली रिक्वायर्ड. अभी आगे जाके नाम आता है प्रिंट ऑल ईमेल आईडीज, ऑल जीमेल आईडीज, जीमेल वाले आईडीज चाहिए उसे. परसेंटेज जीमेल परसेंटेज, ये आ गया कंटेंट्स. मतलब अगर जीमेल आपका ईमेल आईडी में कहीं भी रहेगा तो इट विल प्रिंट. या फिर आप gmail.com लिख सकते हो, gmail.com भी लिख सकते हो, ठीक है.
हम लोग इसका कॉम्बिनेशन भी लेते हैं, जैसे कि नेम स्टार्ट्स विथ ए, कंटेन्स लेटर ई एंड एंड्स विथ लेटर एच। तो ये हो गया उसका पैटर्न। सपोज आई वांट ऑल द नेम्स, नेम लाइक जिसमें एटलीस्ट 3 कैरेक्टर्स है, 1, 2, 3 परसेंटेज। ऐसा नेम जिसमें एटलीस्ट 3 कैरेक्टर्स है। एग्जैक्ट 3 कैरेक्टर अगर चाहिए तो बस 3 परसेंटेज अंडरस्कोर डाल दो। ऐसे नेम देगा जिसमें सिर्फ 3 लेटर्स है। So with help of this, you can form any pattern to compare. All right. So this is also one of the very important queries. Now I am going to teach you one of the very good implementation of SAS. एक प्रोग्रामिंग का इम्प्लीमेंटेशन है। हम लोग एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं परसेंटेज लेट करके। परसेंटेज लेट इज अ यूज्ड टू डिक्लेयर द वेरिएबल जिसका नाम है स्टूडेंट टाइप, और उसमें एक वैल्यू डाल के रखा है डेटा यूजी। स्टूडेंट टाइप में डेटा क्या है? यूजी। इसे बोलते हैं मैक्रो वेरिएबल, इसे बोलेंगे मैक्रो वेरिएबल, ठीक है। और उसकी वैल्यू अभी देखो यहां पे ये मैक्रो वेरिएबल यूज किया है और यहां पे भी यूज किया है, मतलब ऐसे 10, 20, 25 जगह पे सेम डेटा रिपीट हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूटेड बाय मैक्रो वेरिएबल। क्योंकि कल को अगर मुझे यूजी के जगह पे पीजी स्टूडेंट का डेटा देखना है तो मुझे सिर्फ ये वेरिएबल में जाके यूजी की जगह पे पीजी सिलेक्ट करना है, तो सारा कोड अपने आप चेंज हो जाएगा एंड इट विल गिव मी आउटपुट फॉर द पीजी स्टूडेंट। सो दिस इज वेरी सिंपल वे टू change the variable. I hope you got my point and why we use macro variables in our programming language. So इसके आगे डेटा को थोड़ा और डेकोरेट करेंगे, जैसे कि अगर आपका रुपीस का कॉलम है, अगर रुपीस का कॉलम किसने ऐसे प्रिंट किया तो इट डजंट लुक्स गुड, राइट? But if I printed $10,189, it looks so nice and it looks like currency. So for that reason, we use a clause called as format. किसी भी कॉलम को हम लोग फॉर्मेट कर सकते हैं into given default formats. अभी देखो फॉर्मेट में अगर हमने डॉलर लिखा, डॉलर का मतलब होता है it is a character format. Please remember. And if nothing is written, then it is a numeric format. Nothing is written, then it is a numeric format. उसके बाद W ये उसका width बताता है। width मतलब जैसे कि मेरा नाम है महेश, इसकी width कितनी है? 1 2 3 4 5 6 डॉट। ओके, 6 डॉट। अगर मैंने लिखा $6 डॉट, इसका मतलब है इट इज अ कैरेक्टर डेटा ऑफ 6 लेंथ। उसी के जगह पे मैंने लिखा 7.2, सिर्फ 7.2 लिखा। इसका मतलब क्या होता है बेटा? इट्स अ न्यूमरिक डेटा इन विच देयर आर 9 डिजिट्स आउट ऑफ विच 2 डेसिमल पॉइंट्स। 9 digits out of which 2 decimal points. Okay, so these are some standard examples. W dot B. Suppose I have written just 5 dot, then it will print this. This is my original number. It will print. डॉट के बाद कुछ नहीं है ना, तो डेसिमल वैल्यू ट्रंकेट कर दिया। यहाँ पे डॉट के बाद कितना है बेटा? 1, तो डेसिमल के बाद इट इज शोइंग 1 वैल्यू। यहाँ पे लिखा है कॉमा 8.2, मतलब एक कॉमा फॉर्मेट है, मतलब यहाँ पे देखो एक कॉमा आ गया 3 डिजिट के बाद, और टोटल लेंथ मैक्सिमम 8 है, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम अचीव नहीं हुआ है तो नो प्रॉब्लम। $10 1 2 3 4 5 6 7 8 8, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ठीक है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे ये 8 के जगह पे 7 कर दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगा, यहाँ पे 6 कर दिया तो और बड़ा प्रॉब्लम होगा, फिर ये निकालना पड़ेगा, सो ऑन। ठीक है, और ये सारे फॉर्मेट्स आपने देख लिए। आफ्टर दैट सिमिलरली, जैसे कि मैंने बोला कि डेट का जो वैल्यू होता है इट इज सेव्ड एज अ नंबर। डेट कॉलम में क्या होता है बेटा? नंबर होता है। ओके, और ये नंबर अगर मैं दिखाऊं कस्टमर को तो उसे कुछ भी नहीं समझेगा। तो फॉर दैट आई विल यूज डिफॉल्ट फॉर्मेट कॉल्ड एज डेट 7, जो क्या दिखाएगा? 2 डिजिट का डे dd, मंथ MON और 2 डिजिट का ईयर। इट इज वेरी पॉपुलर फॉर्मेट, मैक्सिमम प्लेसेस वी यूज दिस, बट डेट 9 इज अ डिफॉल्ट फॉर्मेट। ये डेट का डिफॉल्ट फॉर्मेट है, तो बाय डिफॉल्ट आप हमेशा इसमें डेट को फॉर्मेट करते हो। ओके, एंड दिस इज द फॉर्मेट। उसके बाद MMDDYY, पहले मंथ 2 डिजिट का, फिर डे, फिर YY। टोटल लेंथ उसका 10 है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो अगर मैंने गलती से कभी MMDDYY 8 डॉट लिखा ना, 8 डॉट, तो ये इन दोनों को उड़ा देगा। स्लैश दिख रहे कि नहीं? उन दोनों को उड़ा देगा। अगर मैंने 6 डॉट लिखा तो वो ईयर के इन 2 डिजिट्स को उड़ा देगा। देखो कितना इंटेलिजेंटली काम कर रहा है। 6 डॉट लिखा तो क्या लिखेगा? 0 1 15 18। सो इंटेलिजेंटली इट वर्क्स। देन मंथ नेम, वीक डे, ऐसे बहुत ज्यादा फॉर्मेट्स अवेलेबल है। तकरीबन 100-150 फॉर्मेट्स आर रेडीमेड अवेलेबल टू यू। ठीक है, अभी फॉर्मेट करे कैसे? विथ वन एग्जांपल। नाउ इफ यू राइट दिस, तो व्हेन इट इज प्रिंटिंग योर टेबल, हाइट के लिए इट इज प्रिंटिंग एज इट इज। वेट के लिए 3 डॉट। 3 डॉट का मतलब क्या है? 147 47 75। तो डेसिमल पॉइंट नहीं है। क्या नहीं है? डेसिमल पॉइंट नहीं है। डीओबी के लिए डेट 9 का फॉर्मेट अभी मैंने आपको दिखाया था। सो दिस फॉर्मेट इज यूज्ड ओवर हियर डेट 9 के लिए। ठीक है, सो नेक्स्ट इज प्रॉक सॉर्ट। अभी हम लोग आते हैं ऑर्गेनाइजिंग डेटा इनटू सिस्टमैटिक मैनर। तो मैं डेटा को सॉर्ट करूंगी। तो मैं अब डेटा को सॉर्टिंग करूंगा प्रॉक सॉर्ट टेबल से। अभी इसका स्पेशलिटी ये है, ये सॉर्ट करके एक दूसरे टेबल में रिजल्ट डालेगा। ये सॉर्ट करके टेबल का रिजल्ट दूसरे टेबल में डाल देगा। अगर मैंने ये आउट नहीं लिखा तो ये उसी टेबल पे ओवरराइट करेगा। ठीक है, अगर आउट नहीं लिखा तो, और अगर आउट लिखा तो वो ये टेबल को सॉर्ट करके इस टेबल में डालेगा। तो ये है अनसॉर्टेड टेबल और ये है सॉर्टेड टेबल। ठीक है, यहां पे बाय डिसेंडिंग पहले लिखा जाता है बेटा, डिसेंडिंग पहले लिखा जाता है कॉलम नेम से। और अगर आपको असेंडिंग चाहिए तो लिखने की जरूरत नहीं है। बाय डिफॉल्ट अगर मैंने लिखा बाय नेम, अगर ये लिखा मैंने, तो बाय डिफॉल्ट ये असेंडिंग ऑर्डर में क्लासिफाई हो जाएगा। ठीक है, तो जस्ट एग्जांपल्स फॉर यू। देखो, स्टूडेंट को मैंने सॉर्ट कर लिया बेस्ड ऑन नेम, और ये असेंडिंग है क्योंकि कुछ नहीं लिखा है, डिफॉल्ट इज असेंडिंग। और ये लिख दिया मैंने टेस्ट स्टूडेंट में। वैसे ही स्टूडेंट को देखा, नेम से डिसेंडिंग ऑर्डर पे किया है। देखो अभी यहाँ पे नेम नहीं आएगा, और ये डेटा मैंने लिख दिया नए वाले टेबल में। करेक्ट है। वैसे ही यहाँ पे देखो
नेम लिखा है, नेम से पहले कुछ नहीं है, मतलब ये असेंडिंग करेगा। रोल नंबर से पहले क्या लिखा है, डिसेंडिंग, तो ये डिसेंडिंग और रोल नंबर होगा। मतलब देखो नेम असेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है और रोल नंबर डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है। सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस एग्जाम्पल। ऑलराइट, सो इसके बाद मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिखाऊंगा जिसमें वी कैन रिमूव डुप्लीकेट रोज। ओके, सॉर्ट का एक बहुत अच्छा इंप्लीमेंटेशन जिसमें हम लोग डुप्लीकेट्स को रिमूव कर सकते हैं। देखो डेटा स्टेप इधर लिखा मैंने, आउटपुट टेबल है, नो ड्यूप रिकॉर्ड्स, नो ड्यूप, नो डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स, नो डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स। और अगर मुझे डुप्लीकेट जो है जो मैं डिलीट कर रहा हूं, अगर मुझे देखने तो मैं लिख सकता हूं ड्यूप आउट, डुप्लीकेट आउट, और एक टेबल मैंने डिजाइन किया है डुप्लीकेट्स रखने के लिए। और इसने क्या किया, सारे मतलब पूरे रो के कॉलम को कंसीडर किया डुप्लीकेट चेक करने के लिए। मतलब रो रिपीट होता है ना तो ही वो डिलीट करेगा, अदरवाइज नॉट। सो लेट अस सी वन एग्जांपल नाइसली। टेस्ट स्कोर्स करके अपना एक डेटा सेट है जहां पे बारबरा मैथ 96, बारबरा मैथ 96, ये पूरा रो देखो 2 बार रिपीट हुआ है, पहली बार इधर और दूसरी बार इधर। ओके, तो अगर मुझे ये प्रोसीजर मैंने अप्लाई किया तो 3 टेबल क्रिएट होंगे। एक तो ओरिजिनल जो कि डिलीट नहीं होता, दूसरा सॉर्टिंग का आउटपुट वाला, और तीसरा डुप्लीकेट के आउटपुट वाला। देखो ये सॉर्टेड है रिजल्ट, दिस इज सॉर्टेड, और जो डुप्लीकेट था वो इस डुप्लीकेट के टेबल में डाल दिया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, गुड। तो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वाला, जहां पे मैंने एक मतलब ऑल रो नहीं लिया, मैंने एक कॉलम लिया जिसमें मैं डुप्लीकेट ढूंढ रहा हूं। एक कॉलम में डुप्लीकेट ढूंढा और वही काम मैंने वो कॉलम के लिए किया। देन दिस विल बी माय आउटपुट, so that I can remove a single duplicate also, as well as I can remove multiple duplicates also. पूरा रो सेम रहेगा तो भी वो निकाल सकते हैं, या फिर सिर्फ अगर एक कॉलम रिपीट हो रहा है तो वो निकालना भी आसानी से पॉसिबल हो जाएगा। ओके, तो आज का लर्निंग आउटकम हमने आज देखा वेरियस प्रोसीजर्स टू प्रिंट द डेटा, जिसमें मैंने सीखा प्रॉक प्रिंट, प्रॉक फ्रीक्वेंसी, प्रॉक मीन्स, प्रॉक यूनिवेरिएट। उसके बाद में हमने सीखा वेयर स्टेटमेंट, जहां पे मैंने रो फिल्टरेशन का काम किया। नेक्स्ट हमने एक्सप्रेशन लिखना सीखा, जिसमें हमने इन, बिटवीन, लाइक, नॉट, एंड, और ऐसे बहुत सारे एक्सप्रेशंस स्टडी किए। उसके बाद हमने ऑर्डरिंग सीखा। ऑर्डरिंग में हमने डुप्लीकेट्स को रिमूव करना भी सीख लिया। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले लेक्चर में मिलेंगे बहुत बढ़िया से कंसेप्ट के साथ। तो ऐसे ही लाइक करते रहे सारे वीडियोस को और विजिट करें हमारा चैनल डेटा गुरु सिंप्लीफाइड डेटा साइंस, जो आपके लिए हिंदी में डेटा साइंस का कंप्लीट नॉलेज देगा। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स।